Hello everyone, this is Lakhvinder Singh, Assistant Professor of Computer Science, Higher Education Haryana, and presently posted at Government College, Chachroli, Yamunanagar. So dear students, today we are continuing the part of computer memory. As you know that we have discussed part 1 in which we studied about primary memory, primary storage, and in the second part of memory concepts, we are going to discuss about secondary storage. So dear students, the objective of my presentation is to get general idea about secondary storage, to obtain information concerning the advantages and disadvantages of secondary storage, to obtain general idea about types of secondary storage, to know the cause of using secondary storage. So now we will start from the overview. We will discuss the introduction of secondary storage, advantages, disadvantages, and the further parts. So let's start. Introduction. Students, every computer system consists of variety of devices. As we discussed earlier, that computer system is a collaboration of various components of computer. We used to see some input devices, we used to see some output devices. Usually we see a box or a cabinet which is known as CPU, central processing unit. But inside that central processing unit, there are so many other kind of hardwares, other kind of electronic equipments, and out of them we are having some compulsory equipments like primary storage and secondary storage. We can add on some future components as per our requirement. So what is secondary storage? Secondary storage technology refers to storage devices and storage media that are not always directly accessible by a computer. This differs from primary storage technology such as internal hard drive, which is constantly available. Because as I told you earlier, that hard disk is the compulsory part of computer system. That's why we try to get that in primary storage. Now if we talk about secondary storage, there are so many other devices which we use for storage of data. In computer science, any means of storing and retrieving data external to computer itself but accessible to program is known as secondary storage. We are having flash drive, floppy drive, zip disk, CDs, DVDs, storage drives, magnetic disk, and so many other kind of devices. Basically, secondary storage used in a computer system to overcome the limitation of primary storage. जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइमरी स्टोरेज की एक लिमिट है जिसमें आप एक उस लिमिट के अंदर रहकर ही डेटा स्टोर कर पाओगे, और उसमें फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पीड का भी फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए हमें सेकेंडरी स्टोरेज चाहिए, सेकेंडरी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। एडवांटेजेस बहुत सारी हैं। सेकेंडरी स्टोरेज सेफ रहते हैं, रिलायबल रहते हैं, परमानेंट रहते हैं, हाई स्पीड डिवाइसेस रहते हैं, हाई एंड ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा हम स्टोर करते हैं, कॉस्ट भी कम होती है, और ये नॉन वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मैंने बताया आपको पहले भी। वॉलेटाइल मीन्स क्या हुआ? जिसके कंटेंट्स इलेक्ट्रिसिटी के जाते ही आपके इरेज हो जाए। जो डेटा एक बार सेकेंडरी स्टोरेज में आ गया वो इरेज तभी होगा जब आप चाहोगे। ओके, डिसएडवांटेज भी रहती है थोड़ी सी। तो जो रैम है हमारी, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस जो फास्ट होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज स्लो होते हैं बिकॉज वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल है। जो इन्फॉर्मेशन है वो जो हर समय कंप्यूटर के साथ है वो प्राइमरी स्टोरेज में है, तो सेकेंडरी स्टोरेज की इन्फॉर्मेशन दूर होती है और इसका टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। कब आए ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस? 1956 में पहली बार IBM ने 5 MB 5 मेगाबाइट से स्टार्ट किया था। थोड़े टाइम बाद इसकी कैपेसिटी हमने बढ़ाकर कुछ हमने फ्लॉपीज डिज़ाइन की। 1980s में आते आते बड़े बड़े ब्रांड आ गए। IBM के बाद सोनी और फिलिप्स ने CD ड्राइव्स लॉन्च कर दी जिसमें 650 to 700 MB ऑफ डाटा आ जाता है, और 1990 से लेकर आज तक हमारे पास बहुत एक लंबी लिस्ट है। कार्ड रीडर है, मेमोरी स्टिक्स हैं, मल्टीमीडिया कार्ड्स हैं। वी आर हैविंग मैनी एंड एन नंबर ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस।
तो जो कॉमन डिवाइसेस हैं या कॉमन टाइप्स हैं उसमें आता है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क। सो सेकेंडरी स्टोरेज में सबसे पहले बात करेंगे मैग्नेटिक टेप की। सो डियर स्टूडेंट, मैग्नेटिक टेप एक ओल्डेस्ट स्टोरेज डिवाइस है जिसने कंप्यूटर सिस्टम को शुरू से यूज़ हम कर रहे हैं, चाहे वो मेन फ्रेम कंप्यूटर में चले हों, चाहे वो उसके बाद जो भी कंप्यूटर की सीरीज़ आई है। ये प्लास्टिक कोटेड एक मटेरियल है जो मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है और ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है और ये रीड और राइट दोनों के काम आता है। इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी एक्सपेंसिव रहती है। ये रील्स में यूज़ होता है। अगर आप थोड़ा सा इसको देखो कि आपके जो पुराने ज़माने की रील्स थी वो सारी इसी टेक्निक पर बेस्ड थी, तो वो मैग्नेटिक टेप कैटेगरी में आती हैं। मैग्नेटिक डिस्क हम यूज़ कर रहे हैं, आज भी यूज़ हो रही है। आपकी जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो एक मैग्नेटिक डिस्क ही है। थिन सर्कुलर मेटल और प्लास्टिक डिस्क कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल और स्टोर्ड करती है ये मैग्नेटिक स्पोर्ट्स में। और रैंडम एक्सेस ड्राइव है ये जो फास्टर है मैग्नेटिक टेप से। बेसिकली इसके 3 मेजर टाइप में हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है और जिप डिस्क है। हार्ड डिस्क को हम HDD बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच्ड है। एज आई टोल्ड इन प्रीवियस स्लाइड्स कि आपको याद होगा कि उसमें हमने सीखा था कि पहले KBs, फिर MBs और फिर GBs में, लेकिन आजकल TBs में भी हम हार्ड ड्राइव को ले रहे हैं। फ्लॉपी ड्राइव एक पुराना तरीका है जो डेटा को स्टोर करने के काम आता था। नॉर्मली इसको बैंक्स यूज़ करते थे डेली बेसिस की डेटाबेस की रिपोर्ट को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक पहुंचाने के लिए। सो मैग्नेटिक डिस्क का जो पहला पार्ट है हार्ड डिस्क, उसके वेरियस साइज आते हैं, उनके वेरियस कैपेसिटी आती है, एक से ज़्यादा मेटल प्लेट से बनी होती है, मैग्नेटिक मटेरियल इसके अंदर होता है, इसमें एक्सेस आर्म होती है और रीड और राइट हेड होते हैं। इसका एक वेट भी होता है, साइज में भी थोड़ी सी बड़ी है, बल्कि है, और इसका एक वेट भी है। कंप्यूटर सिस्टम में जो CPU है उस CPU में अगर हम बात करें कि जो हैवी इक्विपमेंट लगा हुआ है वो हार्ड डिस्क लगी हुई है। मैग्नेटिक डिस्क की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें सेकंड पार्ट फ्लॉपी डिस्क आता है, जो मैंने बताया पहले हम यूज़ करते थे। ये एक प्लास्टिक का एक कवर है और उसके अंदर एक मैग्नेटिक मटेरियल की फिल्म है और जो स्टोर करती है मैग्नेटिक स्पोर्ट्स में। ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करने के काम आती है। जैसे मैंने बताया आपको कि पहले जो बैंक्स या छोटे ऑफिसेज या गवर्नमेंट ऑफिसेज अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में डाटा मूवमेंट का जो काम करते थे वो फ्लॉपीज के जरिए होता था। बिफोर इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट या बिफोर इंटरनेट जो सभी लोगों के घरों में आया, ऑफिसेज में आया, उससे पहले ये फ्लॉपी डिस्क चलती थी। सपोज एक बैंक ने आज सुबह से लेकर शाम तक जो ट्रांजैक्शन की हैं तो उन ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड बना के कंप्यूटर से वो रिकॉर्ड लेकर उसको दूसरी ब्रांच में सील्ड एनवेलप में दिया जाता था, ताकि दूसरी ब्रांच भी वो डाटा या वो जो हेड ऑफिस है वो डाटा एक्सेस कर पाए कि आज पर्टिकुलर ब्रांच की क्या कलेक्शन हुई है, क्या डेबिट और क्रेडिट हुआ है। सो ये भी एक अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट था जो लोगों ने स्टोरेज के लिए बहुत बड़े लेवल पे यूज़ किया। इसी का थोड़ा एडवांस वर्जन आ जाता है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में क्या रहता है कि वो सिमिलर है आपके फ्लॉपी डिस्क से, इसका बस जो साइज़ है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। लाइक जो पुराने टाइम की जो फ्लॉपी डिस्क है उसमें बहुत कम डाटा आता है, लेकिन जो मैग्नेटिक डिस्क आई जिप डिस्क, इसमें डाटा की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो ज़्यादा है। सो इस तरह से आप इसको थोड़ा यूज़ कर सकते हो। फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आगे ऑप्टिकल डिस्क आती हैं। ऑप्टिकल डिस्क में क्या हुआ, जिसमें लेज़र बेस्ड काम हुआ। लेज़र बताया था मैंने, लाइट एम्पलीफिकेशन है जो स्टिमुलेट करती है एमिटेड रेडिएशंस को, और ये भी आपके ऑप्टिकल डिस्क में जो जो होल्स लगे होते हैं उनका काम करती है। और जो प्रेजेंस ऑफ होल है वो 1 को रिप्रेजेंट करती है, अगर वो वहाँ पे एब्सेंट है तो वो 0 को रिप्रेजेंट करती है। तो ऑप्टिकल डिस्क का भी बहुत यूटिलाइजेशन हम लोगों ने की है। एक लंबी सीरीज़ है ऑप्टिकल डिस्क की जो स्टार्ट होती है CD रोम से, फिर CD-R से, फिर CD-RW, इसी तरह से DVD रोम, DVD-R और DVD-RW। बेसिकली CD इतना पोर्टेबल डिवाइस बना कि एक टाइम था जब कैसेट्स रिमूव हुई थी, जो स्टीरियोज या टेप रिकॉर्डर में हम अपनी कैसेट्स यूज़ करते थे, उन कैसेट्स को रिप्लेस किया था वो CDs ने रिप्लेस किया था।
जब एक टाइम सीडीज़ आई तो बड़ी कॉस्टली रेंज में आई, बाद में ये सीडीज़ इतनी कॉमन हो गई कि इसको आ, लोगों ने मतलब किस तरह से यूज़ किया आप वो देख सकते हो। लोगों ने घरों में इसके आर्ट एंड क्राफ्ट के काम कर लिए सीडी से। तो सीडी की जो वैरायटी है, सीडी रोम की बात हम करते हैं, स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जिसमें डाटा आपका स्टोर होता है रीड करने के लिए। डाटा आप ट्रांसफ़र कर सकते हो एक पर्टिकुलर सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। इसकी जो कॉमन कैपेसिटी रही है वो 650 मेगाबाइट से 750 मेगाबाइट है। सपोज हम पहले जो ऑडियो सॉन्ग्स की सीडीज़ कंपनीज रिलीज़ करती थी, बहुत बड़ा बिजनेस था ऑडियो सॉन्ग की एक सीडी रिलीज़ होनी, उसमें 8 या 9 सॉन्ग्स या 10 सॉन्ग्स, एक सपोज सिंगर है या एक मूवी है उसके सॉन्ग्स रहने, तो वो मूवी रिलीज़ होने से पहले उसकी सीडी आ जाती थी, तो लोग उसके सॉन्ग सुन सुन के ही उस मूवी को पुराना करते थे। तो फिर बाद में थोड़ा सा आया कि इस उसी मूवी की सीडीज़ आई, एक मूवी पूरी एक सीडी में नहीं आती थी तो उसकी 2-3 सीडी बनाई जाती थी, तो 2-3 या 4 सीडी में वो पूरी मूवी स्टोर होती थी। अब जो ऑप्टिकल डिस्क का सेकंड पार्ट आया वो रिकॉर्डेबल, वो वाली सीडी जिसमें कैपेसिटी होगी वो रिकॉर्ड भी हो सके, वो रिकॉर्ड भी हो सके। सपोज आपने एक सीडी मार्केट से ली ब्लैंक और आप उसको अपने घर लाए और कंप्यूटर में डाला, आपने अपनी चॉइस के कुछ डॉक्यूमेंट, सपोज आपकी वो वर्ड फाइल है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई फोटोज़ हैं, कोई वीडियो है, कोई क्लिप है, आपने उसके अंदर डालना है। जो पहले वाला वर्जन था उसमें सिर्फ रीड हो रहा था, उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता था। ये वर्जन आया इसमें रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। तो ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, सोनी और फिलिप्स जैसी कंपनी ने इसको लॉन्च किया और इसका बहुत पॉपुलर यूज़ लोगों ने किया है। ऑप्टिकल डिस्क में आगे पॉइंट आता है रीराइटेबल। सपोज अभी आपने जो सबसे पहला सीखा उसमें सीडी आपको मिली जो कंपनी ने निकाली थी, उसके बाद एक सीडी मिली जिसको आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब आपने वो रिकॉर्ड वाली सीडी किसी को दी, वो बेकार हो गई। अब आप चाहते हो कि आज मैं एक सीडी रिकॉर्ड करूं और कुछ दिन बाद उसके कंटेंट पुराने इरेज करके और उसको नए कंटेंट्स डालूं, तो उसके लिए आपको चाहिए वो वाली सीडी जो रीराइटेबल हो। तो रीराइटेबल सीडी को हमने बोला CDRW। इसके अंदर डेटा राइट भी होता है और रीराइट भी आप कर सकते हो। फिर इसके अंदर ऑप्टिकल डिस्क का नाम आया, जो एडवांस वर्जन आया, डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क बहुत ही पॉपुलर थी और आज भी हैं। स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क। ये भी लेज़र बीम टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं, लेकिन इसमें डाटा को कंप्रेस करके डाला होता है और शॉर्ट वेव लेंथ इसकी होती है और ये 17 GB तक, 17 GB या इससे ज़्यादा भी डाटा को स्टोर करती हैं। मतलब एक टाइम था जब आप एक मूवी को डालने के लिए 3 से 5 CDs यूज़ करते थे और एक टाइम ऐसा आ गया जब आप एक ही DVD में 5 मूवीज़ डाल लेते हो। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन CD एंड DVD। फर्स्ट जो DVD है उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ इसके एवोल्यूशन के बाद। सो इस तरह से जो डॉक्यूमेंट वन बाय वन आते गए, वो आप देखोगे कि सीडीज़ में जो उसकी कुछ वीकनेसेस थी वो वीकनेसेस को रिमूव किया गया और उसको आगे डीवीडी में स्ट्रेंथ बनाकर दिया गया। सबसे इम्पोर्टेंट काम था कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी, लाइक सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी कम थी। जो पहले वाला वर्जन आया उसमें 8 to 9 सॉन्ग्स या 8 to 9 फाइल्स या एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा आता था। जब वो सीडीज़ को रिकॉर्ड करना शुरू किया तो उसमें हमने थोड़ा सा और डाटा को एनहांस किया। जब से डीवीडी आई तो डीवीडी ने आते ही पूरा सीडी सिस्टम को ही रिप्लेस कर दिया, तो बहुत सारा डाटा इसमें इकट्ठा एक ही डीवीडी में स्टोर आप कर सकते हो। ऑप्टिकल डिस्क में डीवीडी में भी ऑप्शन आ गया कि आपने डीवीडी मार्केट से ली है और उसमें 3-4 मूवीज़ या 3-4-5 या 10 फाइल्स या कुछ ऐसा डाटा आपके पास था, आपने उसको आप घर में लाए और अपने सिस्टम में उसको डाटा को ट्रांसफ़र कर लिया। अब वो आपकी जो डीवीडी है आप उसको री रिकॉर्ड कर सकते हो। तो री रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ कि आपने जो प्रीवियस डाटा को डिलीट कर दिया और नया डाटा उसमें डाल दिया। डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस अवेलेबल आप उसमें डाटा को मूव कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें कि फ्रॉम द बिगनिंग में हमने सीखा कि जो स्टोरेज डिवाइस पुराने टाइम पे आए, जो कैसेट्स थी, अगर आपको या आपके पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो कि एक टाइम था जब लोग अपनी शादियों की जो सीडीज़ या डीवीडीज़ तो नहीं होती थी, उसमें बड़ी सारी कैसेट्स हुआ करती थी, या जो सॉन्ग सुनने के लिए जो हम छोटी रील वाली कैसेट्स यूज़ करते थे, तो उनमें भी ये टेंडेंसी थी कि वो वन टाइम आती थी और उसके बाद उसमें रिकॉर्ड नहीं होता था। धीरे धीरे उसमें एडवांस आया और एडवांस करते करते उसके में भी एक कैपेसिटी आ गई कि उसको
पिछले सॉन्ग्स को रिमूव करवा दिया और नए सॉन्ग्स को उसमें डाल दिया। तो फिर धीरे धीरे जो टीवी के साथ हमने कनेक्ट किए, वो बड़े से सीडी प्लेयर आते, कैसेट प्लेयर आते थे, जिनको हम कैसेट प्लेयर बहुत बड़े लेवल के थे, उसमें कैसेट्स डाल के आप एक मूवी, फिर एक मूवी की 4 कैसेट्स हुआ करती थी, दूसरी कैसेट, तीसरी कैसेट और चौथी कैसेट्स डाल के आप उसको देखते थे या सुनते थे। सो जो टेक्नोलॉजी है वो डे बाय डे एडवांस हो रही है और टेक्नोलॉजी ने नए नए रिवॉल्यूशन क्रिएट किए हैं। तो उन रिवॉल्यूशन की सीरीज़ में आप स्टोरेज डिवाइस के मैग्नेटिक डिस्क के लेकर आप ऑप्टिकल डिस्क पर आए हो। ऑप्टिकल डिस्क में आपने ये सीडी और डीवीडी जो बहुत ही पॉपुलर रहे हैं उनको आपने सीखा है। तो डीवीडी की हम बात कर रहे थे, जो डीवीडी रिकॉर्ड भी हो जाती है, नॉर्मली यूज टू स्टोर हाई डेफिनेशन वीडियो मूवीज़, और इसको आप ब्लैंक डिस्क लेकर इसमें अपने मर्जी से अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। फिर आगे आता है डीवीडी रीराइटेबल। ये डीवीडी रीराइटेबल का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये एज मैनी टाइम्स पिछले डाटा को आपने रिमूव किया और जितने आपको दोबारा से दिल किया आप उसमें डाटा डाल दिया। पायनियर नाम की कंपनी ने ये बहुत ज़्यादा डाटा को बनाने के लिए इनकी एक सीरीज़ आई थी, जो डीवीडीज़ को बनाने की पूरी सीरीज़ आई थी। अब जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की अगर हम सीरीज़ की बात करें तो ये नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल का यहाँ पर क्या मतलब हुआ, द डिवाइसेस विच वी अर्लियर यूजिंग वर वॉलेटाइल डिवाइसेस, लाइक आपने प्राइमरी मेमोरी यूज़ की है, जो आपकी रैम है उसने कुछ टाइम के लिए आपके कंटेंट्स को आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपकी स्क्रीन पर दिखा के रखा। सपोज आप अपनी कंप्यूटर लैब में गए और आपको कोई भी टास्क है, सपोज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई काम आपने करना शुरू किया, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उस काम को करने के लिए आपने एक लेटर टाइप किया, और लेटर टाइप करते करते आपको लगा कि एकदम से कि मैं इसको अभी काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा और लिख लूँ, सेव नहीं किया आपने, और अचानक से जो पावर है वो चली गई। अब जब पावर जाती है तो वो क्या होता है, जो कंटेंट्स आपकी स्क्रीन पे विजिबल था, आप जब थोड़ी देर बाद पावर आपकी आती है और आप उसको बूट करते हो, स्टार्ट करते हो, तो आपके वो कंटेंट्स वहाँ पे नज़र नहीं आते। सपोज MS वर्ड था, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम था, या किसी भी लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम आप जो टाइप कर रहे थे, तो आपको नज़र नहीं आता वो कहाँ गया। सो वो बात है कि वो वोलेटाइल था, उसको जब तक पावर मिल रही थी वो तब तक आपके डाटा को स्टोर कर रहा था, जैसे ही पावर गई और वो वहाँ से चला गया, वो प्राइमरी मेमोरी का काम था। इसलिए प्राइमरी मेमोरी को वोलेटाइल बोलते हैं, टेम्परेरी बोलते हैं। अब हम जिस मेमोरी को हम अब स्टडी कर रहे हैं वो है हमारी सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या हुआ कि अब आपने वही वाला काम MS ऑफिस में या सी लैंग्वेज में आपने एक प्रोग्राम लिखा या आपने एक लेटर टाइप किया, लिखने के बाद आपको आपके टीचर ने बोला कि आप इसको स्टोर करो। आपने पावर फेलियर से पहले उसको स्टोर कर लिया और किसी फोल्डर में, किसी ड्राइव में उसको कोई नाम देकर आपने उसका सपोज आप BCA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपने BCA 1 के नाम से उसको स्टोर कर लिया। अब वो फाइल आपकी परमानेंटली स्टोर हो गई है, और जो स्टोर हुई वाली फाइल है वो आपकी हमेशा आपके सिस्टम में रहेगी, इसलिए वो बन गई नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मीन्स उसके जो कंटेंट्स हैं वो तब तक इरेज नहीं होंगे जब तक आप नहीं चाहोगे। नॉर्मली जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है उनकी एक चलो लाइफ तो होती है, लेकिन फिर भी बहुत लंबा पीरियड है कि आप एक फ्लॉपी में डले हुए मटेरियल को, आप एक मैग्नेटिक डिस्क में डले हुए मटेरियल को, हार्ड डिस्क में डले हुए मटेरियल को बहुत लंबे टाइम तक आप यूज़ कर सकते हो। सो इसलिए वो परमानेंट बन जाते हैं। सेकंड नंबर पर आता है कि आपने बड़ा एक सिंपल टास्क यूज़ किया बैकअप लेने का। सपोज बैकअप की हम बात करते हैं, आपका जो मोबाइल है जो आप डेली बेसिस पे आप यूज़ करते हो, आजकल आप लर्निंग भी उसी पर कर रहे हो, तो मोबाइल में आपको हर टीचर रोज़ अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भेज रहे हैं, या आपको वीडियोस भेज रहे हैं, या वो यूट्यूब के लिंक भेज रहे हैं, या वो आपको कोई ऐसा डाटा भेज रहे हैं, आप भी उनको टेस्ट करके उनकी पिक्चर्स लेकर भेज रहे हो, या आप उनको असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हो। तो ये सारा का सारा डाटा जो है पहले आपके मोबाइल की प्राइमरी मेमोरी में जाता है। प्राइमरी मेमोरी की एक लिमिटेशन है, प्राइमरी मेमोरी में जिस दिन आपका डाटा ज़्यादा फिल होना शुरू हो गया, आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो स्लो हो जाएगा। वो स्लो होता होता इतना स्लो हो जाएगा कि आपको कोई ईमेल आएगी, कोई व्हाट्सएप आएगा, कोई इमेज आएगी, तो वो उसको ओपन करने की पोजीशन में भी नहीं रहेगा। रीज़न, आपको बार बार मैसेज आएगा
ऊपर एक पॉपअप विंडो आएगी कि आपका जो मोबाइल का जो है प्राइमरी स्टोरेज वो ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, उसमें फर्दर स्पेस नहीं है, और आप उस स्पेस को या तो डिलीट करो या उसको शिफ्ट करो। अब आप क्या करते हो, आप एकदम से अपना जो मेमोरी कार्ड जिसको हम बोलते हैं, जो सभी लोग अपने मोबाइल में एक सेकेंडरी स्टोरेज या बैकअप की फॉर्म में रखते हैं, तो आप क्या करते हो, प्राइमरी मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज पर जाकर जो आपके मोबाइल की अपनी मेमोरी है उसमें जाकर आप वहाँ से कॉपी करके या वहाँ से कट करके नई जगह पर जाकर पेस्ट करते हो, या क्या करते हो, आप अपने उस डेटा को वहाँ से मूव करवाते हो कि उस पर्टिकुलर फोल्डर से वो मूव हो जाए किसी दूसरे फोल्डर में। तो वो आपका, इसे बोलते हैं बैकिंग अप ऑफ डेटा। तो आपने अपने सारे डेटा को बैकिंग अप कर लिया। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फिर से उसी स्मूथ फंक्शनिंग में आ जाएगा, जो स्लो था वो उसका स्लो वाला काम खत्म हो गया, अब फिर से फास्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप जब सोशल मीडिया पर कुछ काम कर रहे हो, सपोज आप व्हाट्सएप नाम का एक आप बहुत ही पॉपुलर टूल है जो आजकल टीचिंग में भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हम सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ है, टीचर्स ने मिलकर एक मेंटर मेंटी ग्रुप बनाया हुआ है या टीचर स्टूडेंट का ग्रुप बना हुआ है। तो उसमें हम कोई भी अपडेट है, कोई भी आपके सिलेबस से रिलेटेड है या आपको किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड है या कोई जनरल इन्फॉर्मेशन है, हम आपको आपके ग्रुप्स में डालते हैं। तो व्हाट्सएप की भी एक कैपेसिटी है कि व्हाट्सएप के अंदर भी आप एक पर्टिकुलर लिमिट तक सारे डेटा को रख सकते हो। आपका कल फ़ोन अचानक से ख़राब हो गया और आपने अपने दूसरे फ़ोन में व्हाट्सएप चलाना हुआ, तब जो वो सारा डेटा था व्हाट्सएप वाला, अगर आपने उसका बैकअप ना लिया हो तो वो दोबारा से रिट्रीव नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम क्या सजेस्ट करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज वाली बात आ गई। इसमें सेकेंडरी स्टोरेज आपका कौन काम करेगा, वो गूगल ड्राइव काम कर सकती है या आपका कोई ईमेल काम कर सकता है। जो हमारा ईमेल आईडी है या गूगल ड्राइव जो है वो भी एक सेकेंडरी स्टोरेज के काम करते हैं। क्लाउड पे सब कुछ स्टोर होता है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, बैकअप लेते हो अपने व्हाट्सएप डाटा का। व्हाट्सएप के डाटा में एक ऑप्शन होता है कि आप अपने डाटा का बैकअप ले लो। जैसे ही आपने बैकअप लिया तो आपका सारा डाटा ड्राइव पर जाकर स्टोर हो जाएगा। अब आपका फर्स्ट मोबाइल अगर आपने कभी चेंज भी किया हो, सेकंड मोबाइल में जब आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपके डाटा का बैकअप इस डेट तक अवेलेबल है, वुड यू लाइक टू रिट्रीव। तो आप यस करोगे तो आपको वो सारा डाटा आपके नए वाले फ़ोन के व्हाट्सएप में आ जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है, यूज टू सर्व एज एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके कंप्यूटर सिस्टम में या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में इंटरनल मेमोरी के साथ साथ आप हमेशा अपने डाटा को सेफर साइड में रखने के लिए आप उसको एक्सटर्नल ड्राइव में भी डाल सकते हो। एक्सटर्नल ड्राइव आपका सीडी भी हो सकती है। अगर आपका डाटा बहुत कम है तो आप सीडी में डाल के सीडी को संभाल के रख लो कि इन फ्यूचर आपको लगे कि आपने वो डाटा दोबारा यूज़ करना है तो आप उस सीडी को दोबारा से सिस्टम में डालकर इंस्टॉल करके डाटा को रिट्रीव कर पाओगे। इसी काम को करने के लिए हम लोग पेन ड्राइव्स का, यूएसबी का, फ्लैश ड्राइव का भी यूज़ करते हैं। वो तो एक बहुत ही पॉपुलर टूल बना हुआ है आजकल। हर एक पर्सन जिसके पास मोबाइल फ़ोन है या कंप्यूटर सिस्टम है या लैपटॉप है, उसके पास एक पेन ड्राइव ज़रूर होगी। तो वो पेन ड्राइव का काम क्या हुआ, वो छोटी सी एक कॉम्पैक्ट सी ड्राइव है। आपकी वो स्टार्ट हो जाती है कुछ जीबी से, पहले एमबीज में आती थी, आज कुछ जीबी से लेकर वो बड़ी से बड़ी जीबी तक, 16 जीबी तक भी आम लोग लेते हैं उसको। तो आप उसको जो डेटा है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो भी आपका एक्सटर्नल ड्राइव का काम करेगा। इसको और ज़्यादा बड़े लेवल पे करने के लिए बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आती हैं। अब वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो है वो आपकी पूरे कंप्यूटर सिस्टम का डाटा, यानी जितना डाटा आपकी हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ था, चाहे वो था 10 जीबी, 20 जीबी, 50 जीबी, 100 जीबी, 500 जीबी क्यों ना था, वो सारा का सारा डाटा आपका आप एक्सटर्नल पोर्टेबल हार्ड ड्राइव में ले सकते हो। उसका बेनिफिट क्या हुआ, आपको पूरा लैपटॉप नहीं उठाना कहीं पर, आपको पूरा कंप्यूटर सिस्टम नहीं उठाना कहीं पर। सपोज आप एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हो, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप उस पोर्टेबल हार्ड ड्राइव को अपने पास रखोगे। आप जिस भी सिटी में जाओगे, जिस भी कंट्री में जाओगे, वहाँ किसी भी डेस्कटॉप या लैपटॉप को उसको एज अ फ्लैश ड्राइव या एज अ यूएसबी पोर्ट आप उसको यूज़ करोगे और आपका वो यूज़ करते ही आपका सारा डाटा उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आपकी एक बैकअप का काम करती है।
नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है बिकमिंग मोर एंड मोर पोर्टेबल एज टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसेस। नेचुरली है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी डे बाय डे एडवांस हो रही है, हमें भी क्या लगता है कि हम अपने डाटा को मोर एंड मोर पोर्टेबल बनाएं। पोर्टेबल का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आप अपने डाटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेकर जाते हो। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए आप क्या करते हो, आपको ये रहता है कि आपका जो डाटा है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आराम से पहुंच जाता है। तो इस तरह से आप अपने डाटा को हमेशा किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो। सो पोर्टेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है। फिर इसमें आता है कि बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ करते हैं फाइल्स को शेयर करने के लिए। धीरे धीरे टाइम जो आ गया है वो बड़ा एडवांस आ गया है। अब हम हैवी से हैवी फाइल को, बड़े से बड़े साइज़ वाली फाइल को हम इंटरनेट के जरिए ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो अपने डेली रूटीन को, लाइक बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो अपने डेली रूटीन को अपने बैकअप में लेते हैं और वो संभाल के रखते हैं, या वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच या अपने हेड ऑफिस में वो डाटा पहुंचाने के लिए उसका रोल हम करते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का। देखो धीरे धीरे हम डाटा हमारा बहुत कम होता था, लेकिन आज तो हम हर तरफ डाटा देखते हैं, हर तरफ आपका डाटा नज़र आता है। चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन की अगर हम बात करें, पहले आप 10 20 30 नंबर याद रखते थे, आज हज़ारों नंबर आपके मोबाइल में स्टोर्ड हैं। आपके जितने भी SMS हैं वो सारे स्टोर्ड हैं। आपने कितनी सारी इवेंट्स की, कई सालों की फ़ोटोग्राफ्स हैं आपने वो स्टोर की हुई हैं। आपके जितने भी फंक्शंस हैं उनकी वीडियोस आप लोग स्टोर कर सकते हो, राइट। इसके अलावा ऑफिस में जो भी काम हो रहा है या लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग का काम चल रहा है, ये मेरा लेक्चर भी जो रिकॉर्ड हो रहा है ये भी कहीं ना कहीं बैकअप में हम रखेंगे इसको अपने पास भी, और इसको जब यूट्यूब पे डालेंगे तो यूट्यूब पर भी इसका लिंक आएगा, वहाँ भी ये स्टोरेज का काम करेगा। इसको गूगल ड्राइव पे रख सकते हैं। सो बेसिकली जो कंप्यूटर सिस्टम की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो डेटा को फ्यूचर यूज़ के लिए काम लाने के लिए रखा जाता है। एडिशनल स्पेस बन जाता है आपके डेटा के लिए। लाइक आपके कंप्यूटर सिस्टम की एक लिमिट है, आपने उसमें जितना काम करना था कर लिया, उसके बाद और काम नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे? जितना काम आपका हो चुका है, जिसकी ज़रूरत कम पड़ती है, उसको आप एक अलग से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, चाहे वो पेन ड्राइव है, CD है, या हार्ड ड्राइव में डाल के रख लोगे, जो आपके फ्यूचर में काम आएगा। सो इस तरह से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम आपकी स्टोरेज के बिना, मेमोरी के बिना वो इनकम्प्लीट है। प्राइमरी मेमोरी इज कॉस्टली बिकॉज उसने कंप्यूटर को चलाना है, एक बार कंप्यूटर को स्टार्ट करना है। लाइक जैसे ही आप अपने मोबाइल फ़ोन को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को ऑन करते हो, तो जो उसको बूट करने में हेल्प करती है वो प्राइमरी मेमोरी ही है। उसके बिना तो आपका डिवाइस बूट अप ही नहीं होगा, स्टार्ट ही नहीं होगा, जो आपके मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक्टिव ही नहीं होगा, कुछ भी आप उसमें करोगे वो कोई काम नहीं करेगा, राइट। लेकिन जो परमानेंट स्टोरेज है वो भी प्राइमरी मेमोरी से कम नहीं है। आपने कितना काम कंप्यूटर में किया, अगर आप जस्ट देखने के लिए काम कर रहे तो फिर कंप्यूटर की जरूरत क्या थी? फिर तो वो टाइपिंग मशीन ही काफ़ी थी। टाइपिंग मशीन में पेपर डाला, टाइप किया और वो पेपर आपके सामने है। आप फ्यूचर के लिए जब डाटा को संभालना चाहते हो, आपका आज की जो मेहनत है वो आने वाले टाइम में काम आए, तो उसे स्टोर करने के लिए वी नीड सेकेंडरी स्टोरेज, वी नीड परमानेंट स्टोरेज, और हमें उसकी अच्छी कैपेसिटी भी चाहिए। तो सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी जो है वो स्टोरेज है जो मेन मेमोरी से ज़्यादा स्टोरेज रखती है, और लार्ज डेटा को, बड़ी बड़ी फाइल्स को, फोल्डर्स को, प्रोग्राम्स को, सॉफ्टवेयर्स को आपके संभाल कर रखती है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए नहीं, लॉन्ग लाइफ के लिए, और जो कॉन्टिन्यूसली सिस्टम को रिक्वायर्ड नहीं होते। लाइक आपने कोई भी सिलेबस है, कोई भी आपकी फाइल्स हैं, आपने उसको आज बना लिया, उसको आपका कंप्यूटर आप नहीं मांगेगा आपसे रोज रोज, कंप्यूटर को तो मेन मेमोरी चाहिए। तो आप ये सेकेंडरी चीज़ों के लिए हमारे पास जो मेमोरी बनती है उसे बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट था, और इट ऑल्सो सर्व्स एज एन ओवरफ्लो मेमोरी व्हेन द कैपेसिटी ऑफ द मेन मेमोरी इज एक्सीडेड, राइट। जैसे मैंने एग्जांपल मोबाइल का दिया, जब आपको लगे कि आपका डाटा एक सिस्टम में नहीं आ रहा है तो आप उसको SD कार्ड में ट्रांसफ़र करते हो, या आप उसको बैकअप की फॉर्म में कहीं और लेते हो। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का जो टॉपिक था, ये सेकंड पार्ट मेमोरी कंसेप्ट्स का
जिसे हम बोलेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, वो हमने आज कंप्लीट किया है। आई होप सभी इसको आप ध्यान से सुन रहे होंगे। आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। टाइम आने पर हम उनके सभी के आंसर्स देंगे। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू स्टूडेंट्स। So students, now it's time of multiple choice question session on the topic computer memory part 2. So question number 1 is the smallest unit of data in computer is, option A is byte, option B is nibble, option C is bit, and option D is kilobyte. So select one. Question number 2. Which of the following is non-volatile storage? Option A backup, option B secondary, option C primary, and option D cache. Now question number 3. Which of the following is a storage device? Option A is tape, option B is hard disk, option C is floppy disk, and option D is all of the above. So try to read questions and answers carefully and select the most appropriate answer. Question number 4. All of the following are examples of storage devices except option A hard disk drives, option B printers, option C floppy disk drives, option D CD drives. Now question number 5. Reusable optical storage will typically have the acronym option A CD, option B DVD, option C ROM, and option D is RW. So try to select the best. Question number 6. The most common type of storage devices are option A steel, option B optical, option C magnetic, option D flash. Now question number 7. A normal CD-ROM usually can store up to dash data, means dash capacity of data. Option A is 680 KB, option B 680 bytes, option C 680 megabytes, option D 680 gigabytes. Now question number 8. Where are data and programs stored when the processor uses them? Option A main memory, option B secondary memory, option C disk memory, and option D program memory. Now it's time of question number 9. Which part of the computer is directly involved in executing the instructions of the computer program? Option A the scanner, option B the main storage, option C the secondary storage, and option D is the processor. Now the last question is question number 10. Main purpose of computer secondary storage device is to, option A is calculate data, option B is temporary store data, option C is permanently store data, and option D is output of information. So dear student, read every question carefully, read all the answers carefully, and then select the most appropriate right answer. Thank you students.